أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها اور كما قال علیہ السلام. محترم حاضرین، الحمدللہ ہم لوگ ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن میں بیٹھتے ہیں اور قرآن کی باتیں اور اس کا معنی مطلب اور جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو سناتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی جو میں آیت پڑھ کر سنایا ہوں اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا ہے. وہ دین الحق، اور سچا دین دے کر کے بھیجا ہے. زندگی گزارنے کا سچا طریقہ دے کر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے تھے، دین تھے، ادیان جسے کہتے ہیں عربی میں، دین جتنے بھی تھے، وہ سارے دینوں کے اوپر یہ اللہ کے پسندیدہ دین کو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور سب کو معلوم کرانے کے لیے کہ یہ دین کتنا اچھا ہے. لوگ زندگی گزارنے کے لیے اپنی اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، مرنے کے بعد دفن کرنے کا طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے چیزوں کو اپنے حساب سے کرتے ہیں. لوگ اپنی پسند سے کرتے ہیں یا نہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ سب لوگ بتاتے ہیں ان کو ایسا ایسا یہ کام ایسا کرو، ایسا کرو. ان کے بڑے لوگ، بڑی عمر والے یا ان کے خاندان والے جیسا بتاتے ہیں ویسا زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے اندر فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں زندگی گزاریں. زندگی گزارنے کا اصل جو دین ہمیں بولتے ہیں، دین اسلام کو بولتے ہیں. یہ دین اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا. اللہ کا جو بھی حکم ہے، اللہ کا آرڈر، وہ آرڈر کو مان لینا، اس پر اس کے مطابق عمل کرنا، اسے بولتے ہیں اسلام. اور دین کا تو کیا؟ دین کا معنی طریقہ، وہ سا کام کیسا کرنا، یہ طریقہ. تو دین اسلام کا تو کیا؟ اللہ کی طرف سے جو قانون اللہ بتایا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقے سے زندگی گزارنے کو دین اسلام کہتے ہیں. تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا، پیغمبر بنا کے بھیجا، اس وقت میں دنیا میں کئی طریقے سے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے. پیدا سے لے کر موت تک ہر کام میں، عبادت میں ہو یعنی کس کو خدا ماننا، کیسی عبادت کرنا، کون سے طریقے کی عبادت کرے تو اچھا رہتا ہے، اگر ان کو سمجھ میں آتا تھا اس طریقے سے لوگ عبادت بھی کرتے تھے ساری دنیا میں. اور ان کے بڑے بتائے ہوئے بڑے لوگ ہیں جو بتائے ہیں، خاندان کے بزرگاں ہو یا گاؤں کے بڑے آدمیاں ہو یا مذہب کے طریقے میں جو لوگ کارکردگیاں کرتے ہیں، تو اس طریقے کے حساب سے لوگ زندگی گزارتے تھے، ان کے پسند کے حساب سے، ان کی سہولت کے مطابق. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو معلوم کرائیں. کیا معلوم کرائیں؟ کہ اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے.
तुम्हारे इबादतों में हो या दुनियावी कामों के अंदर हो और तुम्हारे घरेलू मामलात के अंदर हो, हर काम में अल्लाह ताला तुम लोगों को एक गाइडेंस देता है, हिदायत देता है। हिदायत मतलब रास्ता दिखाना कि ये काम ऐसा करो, ये काम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बताने के लिए। अब अल्लाह ताला तो आसमान से आकर बताता नहीं, तो अल्लाह ताला क्या किया, अपने नबी को भेजा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी को भेजा कि आप क्या कीजिए, मेरे बंदों तक इस दीन को पहुँचाइए। दीन को तो क्या, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े में सारी चीज़ आ जाती है। अल्लाह की इबादत भी आ जाती है, दुनियावी काम भी आ जाते हैं, सारे मामलात उसके अंदर आ जाते हैं। तो अब वो कौन सा काम कैसा करना, अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर बहुत सारी बातें बताया, और उस तरीक़े पर अमल करके दिखाने के लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखा दी कि देखो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। तो अल्लाह ताला यही बताना चाहता है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, दुनिया के अंदर जितने भी दीन हैं वो लोगों के बनाए हुए तरीक़े हैं, लोगों के बनाए हुए रस्म व रिवाज हैं। इन सबको ख़त्म करके अल्लाह के रस्म व रिवाज को, अल्लाह के क़ानून को सारी दुनिया के अंदर फैलाना, सारी दुनिया के अंदर गालिब करना चाहता है। अल्लाह ताला उसकी अच्छाई मालूम कराना चाहता है, और ये इंसान के बनाए हुए तरीक़े पूरे ख़त्म होकर अल्लाह का तरीक़ा, अल्लाह का बताया हुआ तरीक़ा सारी दुनिया के इंसान मान लेना और उस पर अमल करना, तो ये चाहता है अल्लाह ताला, इसलिए भेजा। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बात की गवाही के लिए अल्लाह खुद काफ़ी है कि अल्लाह भेजा है, इसकी गवाही क्या, अल्लाह खुद गवाही देता है। अच्छा, अब ये दीन हमारे तक कैसा आया, अब स्टेप बाई स्टेप बात बताता हूँ, गौर से सुनिए और याद रखिए। वो बाबू इधर सुनो, सब क्या इधर मेरे तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, आकर कुरान की आयतें आपको सुनाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रख लेते और सहाबा को बुला करके उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे कि ये आयतें आई हैं, तुम्हें सुनो, सीख लो और याद कर लो। सहाबा भी याद कर लेते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद कर लेते थे। तो दीन की असल चीज़ क्या है, कुरान। कुरान जो किताब अल्लाह की किताब है, दीन की असल चीज़ है। तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखते थे, सहाबा को याद दिलाते थे, और चंद सहाबा के चमड़े के ऊपर या पत्ते के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर लिख कर रख लेते थे, उसकी हिफाजत करते थे, उसकी हिफाजत करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो बाद में बहुत सारे लोग सहाबा हाफिज थे, कुरान के हाफिज से पूरा कुरान याद था, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से या बीमारी की वजह से या जंगों में जाकर शहीद होने की वजह से बहुत सारे सहाबा इंतकाल हो गए। कौन से, जो हाफिज थे कुरान के, इंतकाल हो गए। तो बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिए कि ऐ अबू बकर, एक काम करो, कुरान को जमा करो, पूरी एक किताब बनेंगे हम। क्यों, जिनको याद है वो लोग गुजर जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं। अब बात के लोग हमको कुरान कैसा पहुँचाने वाले कौन, तो उसके वास्ते तुम्हें क्या करो, कुरान की किताब बनाओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे नहीं ना वो काम, मैं कैसा करूँ, तेरे को डरे हो। तो इन्होंने बोले नहीं, अगर नहीं करेंगे तो कुरान ज़ायब हो जाता है, ये इंसान सब ख़त्म हो जाते, बाद में कुरान है दुनिया में बाकी रहता नहीं, तुम्हें ये काम करना है, ज़रूरी है। तो बोल मशवरा की। तो बाद में तो और दूसरे सहाबा को बुलाकर बिठाकर बातचीत करने के बाद ये मशवरा सामने रखे, सब लोगों को पसंद आया। सब लोग सहाबा बैठ करके जिनको कुरान याद था उन लोग पूरे बैठ करके कुरान को लिखे, किताब की शक्ल में बनाए। ये हमारा दीन का जो असल सरमाया, सरचश्मा जो है, दीन की असल चीज़ क्या है, कुरान, अल्लाह ताला की तरफ से किताब, उसे किताब बनाए, ये एक चीज़। अब दूसरा तरीक़ा क्या है हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना हमारे सामने, सहाबा के सामने था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे, हर काम भी सहाबा देखते थे और उसी तरीके से उन्हें भी करते थे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को देखते थे, करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज आप बोलेंगे हदीसा, वो सुनकर याद रखते थे। उसके बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, तो सहाबा को याद था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो बोले सो बात वो याद थे और करे सो कामा भी देखे थे, उन्होंने खुद भी करते थे। उसके बाद उनके बाद के लोगों को पहुँचाए ताबईन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा था, नमाज रोज़ा, खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह, मौतों को दफन करना, सो कैसा सारे चीज़ें सहाबा क्या करे, ताबईन को सुनाए, उनके बाद वाला को। ताबई इसे बोलते हैं वो आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पैदा हुए, उनको क्या बोलते हैं, ताबई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग देखे उनके साथ में थे ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में इंतकाल होना, तो उनको सहाबी कहते हैं। ताबई किसे कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे नहीं, चांस उनको मिस हो गई, जिन्होंने पैदा हुए लेकिन नबी साहब के इंतकाल हुए, नजदीक में समझो। लेकिन सहाबा को देखे, सहाबा के साथ में उठते बैठते खाते पीते, सहाबा के साथ में थे, तो इनको ताबईन। तो सहाबा क्या करे, ये दीन को ताबईन तक उन्होंने क्या करे, ताबईन उनके बाद वाला तबे ताबईन तक उन्होंने पहुँचाए। तबे ताबईन किसे बोलते हैं, सहाबी को देखे नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखे नहीं, सहाबा को भी देखे नहीं, ताबईन को देखे तो उनको तबे ताबईन। तो इस तरीके से दीन लोगों से होता होता ऐसा पहुँचता हुआ। तो उसमें क्या हुआ, एक ज़माना ऐसा आया कि कुरान तो महफूज हो गया, कुरान तो महफूज हो गया, किताब बना था। इसके ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक किताब बनाए, वो चमड़े पर लिखे थे, पूरा इतनी मोटी जिल्द किताब बनाए। उस वक्त ज़बरान ज़ेरान भी नहीं थे, ये उनको ज़रूरत नहीं ज़बरान ज़ेरा लगाने की, उनको ऐसा पढ़ ले सकते हो। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, इंतकाल हो गए। उनके बाद हज़रत उमर खलीफा बने, उन्होंने इंतकाल हो गए। उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। तो उनके ज़माने में ये कुरान को एक थी किताब, एक बैन को 3 बनाए, उसे देखकर फिर लिखे, 3 किताबें बनाए। चंद लोग हमारे मुसलमान भाई क्या समझते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान को जमा करे, नहीं जमा करें, एक जो किताब पहले थी उसे 3 बैना बनाए, 3 जिल्दा बनाए। अच्छा, ये तो हिफाजत हो गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और अखवाल, मतलब उनके बातें और उनके काम, उसकी हिफाजत कैसा होना, सहाबा देखा देखी दूसरे तक पहुँचाए, ताबईन को, ताबईन तबे ताबईन को पहुँचाए, तबे ताबईन के बाद के लोगों को पहुँचाए। तो इसमें क्या हुआ, चंद लोग सोचे अगर ऐसा पहुँचाते रहेंगे हमें तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि हमें जो सुने हैं वो लिखेंगे, लिख करके दीन की हिफाजत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और आपके कामा लिखना बोलते लिखिए। तो उसमें सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ के ज़माने में थे, हज़रत मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों मदीने वाले थे और इन्हों सन 90 पर 3 हिजरी में पैदा हुए। का मतलब क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 80 को 3 साल के बाद, 90 को 3 हिजरी का तो वो 10 साल निकाल लाना हिजरत के, नबी साहब में जिंदा थे, निकाल डाले तो क्या रहता फिर 80 को 3 साल, 80 को 3 साल के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। पैदा होकर बड़े हुए, लोगों से इल्म सीखे और उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मालिक। तो एक हदीस की किताब। अब हदीस की किताब कैसा लिखते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं कि मुझे मेरे उस्ताद ये बात सुनाए, उनको उनके उस्ताद सुनाए, उन्होंने सहाबी से सुने, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने। तो इस तरीके से लिंक, इसे अरबी में क्या बोलते हैं, सनद। सनद को तो प्रूफ, मुझे मेरे उस्ताद नाम बोलते हैं, फलाने ने सुना ये बात, उन्होंने उनके उस्ताद से सुने, उन्होंने सहाबा से सुने, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने। तो एक किताब लिखे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, रिकॉर्ड है किताब मुअत्ता, उसका नाम मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह। अच्छा, इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ हमारा दीन। हमारा दीन क्या है, दीन के आमाल अखवाल रिकॉर्ड हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने भी एक छोटी किताब लिखी है, किताबुल उम लिखे, किताबुल उम बोलते हैं, मुस्नद शाफी भी बोलते हैं। अच्छा, इन्हों कौन ही, इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द, इमाम मालिक के पास जाकर पढ़ लिए, तो उन्होंने भी एक किताब लिखी। और दूसरे लोगों से भी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात आप सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामा बात आप सुनकर उन्होंने भी एक किताब लिखी।
एक छोटी किताब। अच्छा, अब ये 2 जने से पहले हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम नोमान बिन साबित, मामूल से अरब में अबू हनीफा उनका आ गया। अबू किसे बोलते हैं तो कुनियत, अरबी में कुनियत का मतलब क्या, एक आदमी को नाम से बुलाने से पहले उनका बच्चा रहता है, वो बच्चे के नाम से बाप को बुलाती। अबू हनीफा उनका असल नाम आपको नोमान बिन साबित, साबित उनके अब्बा का नाम, नोमान उनका नाम, लेकिन नोमान कर को बुलाते नहीं थे, ज़्यादा फेमस नहीं थे उन्होंने, अबू हनीफा के नाम से फेमस थे। उनकी बेटी का नाम या तो हनीफा है, तो अबू उनके अब्बा अबू हनीफा के नाम से फेमस थे। तो इन्हों ये 2 जन से भी पहले पैदा हुए, वो किससे, इमाम मालिक से, इमाम शाफी से भी पहले पैदा हुए। इन्हों कब पैदा हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 70 साल के बाद पैदा हुए, तो 80 हिजरी में। इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए हैं, इन्हों 80 में 80 में, यानी 13 साल पहले पैदा हुए। लेकिन इन्हों कहाँ पैदा हुए, इराक में पैदा हुए। इमाम मालिक मदीने में पैदा हुए, इमाम शाफी दूसरे जगह पैदा हुए, लेकिन ज़िंदगी पूरा मक्के मदीने में गुजारे। इमाम जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने इराक में पैदा हुए सन 80 हिजरी में, 80वें साल में। तो इमाम मालिक के 13 साल का फ़र्क ज़्यादा है। अब उन्होंने 150 में इंतकाल हो गया, 150 साल हिजरी में इंतकाल हो, 70 साल उन्होंने जिंदा थे। और उन्होंने क्या थे, एक व्यापारी आदमी, तिजारत करते थे, क्या बुरा काम नहीं, हर आदमी भी अपने लिए ज़िंदगी गुजारने क्या क्या काम करा, तिजारत करते थे। अब उनकी तरफ से बहुत सारी बातें लोगों को पहुंची। अब वो पहुंची सो बातें जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं है ज़्यादा। अब उनके शागिर्दा 2 जने थे, ये अच्छा माइंड में याद रखने की बात है, भूलना नहीं, और हमेशा तुमना को फ़ायदा होने की बात है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी पढ़ाते थे, उनको जो उस्ताद उनको पढ़ाए थे, उन दूसरे उस्ताद के पास जाकर पढ़ लिए थे, वो चीज़ अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। उनके 2 शागिर्दा ख़ास शागिर्दा हैं, बल्ला के शागिर्दा हैं, उसमें 2 जने ख़ास हैं। इमाम अबू यूसुफ एक जने बड़े शागिर्द, इमाम मोहम्मद छोटे शागिर्द, 2 जने भी उम्र में ज़रा बड़े, ज़रा छोटे, 2 जने भी इनके साथ ज़्यादा लगले करते थे, ज़्यादा उनकी बातें सुनते थे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की एक बात क्या है कि उनकी कोई सी भी किताब नहीं है। कोई सी भी एक बात हमें सुनाना, बोलना तो रिकॉर्ड होना, जैसा इमाम मालिक की किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, इमाम शाफी की मुस्नद शाफी या किताबुल उम्म एक किताब है, तो उस तरीक़े से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की कोई सी भी एक किताब सनद के साथ होना पूरा। अब क्या उन्होंने क्या बोलना कि मुझे मेरे उस्ताद फलाने आदमी ये बात सुनाए, मेरे उस्ताद को उनके उस्ताद ये बात सुने, उन्होंने सहाबा से सुने, उन्होंने नबी साहब से सुने, या नहीं तो मेरे उस्ताद को सहाबी बोले, सहाबी नबी साहब से सुने। और ऐसा पूरी एक किताब रिकॉर्ड के साथ होना। अगर ऐसी रहती तो उनके नाम से वो किताब हती, लेकिन उन्होंने किताब लिखे नहीं, कोई सी भी किताब। शागिर्दान को पढ़ाए, क्या पढ़ाए, जो बातें उनको मालूम थे वो बातें उनके शागिर्दान को पढ़ाए। लेकिन उनके तरीक़े में चलने वाले, उनकी बात मानकर चलने वाले बहुत सारे लोग ही हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इधर दूसरे मुल्कान के अंदर भी ही, अफ़गानिस्तान में भी ही, ईरान में भी ही, अभी दूसरे जगह। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, हमें अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले, इमाम मालिक के जो चंद लोग जो हैं उनके शागिर्दा, हमें उनके तरीक़े में चलने वाले, इमाम शाफी के मानने वाले, हमें उनके तरीक़े में चलने वाले, उन्होंने हमारे इमाम। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को भी इन्होंने हमारे इमाम, हमें इनके तरीक़े में चलती। तो यहाँ बात, असल बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ देखो, दीन आकर अल्लाह का पहुँचाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर दुनिया का आलिम हो, सहाबी हो, या कोई भी आदमी हो, ताबई हो, तबे ताबई, कोई भी आदमी दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उन्होंने कैसा बोले हैं, कैसा करें, वो दूसरा तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी। अपनी तरफ से कुछ भी बोलने की जिम्मेदारी नहीं है किसी को भी, यहाँ तक कि सहाबा को भी
जिम्मेदारी नहीं है, वो हक नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि वो चीज़ पहुंचाए बगैर अपनी तरफ से कोई बात उसमें बोलने का उनको हक नहीं है। क्यों? दीन उनका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पॉइंट अच्छा क्या करो। लेकिन चंद लोग क्या करें ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहुंचाए ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहुंचाए ही, लेकिन पूरे हदीसा उनको जब मिले नहीं तो एक मसले का हल बताने के लिए अपनी तरफ से बोले, भाई मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पहुंची नहीं, मैं ये मसले में मेरी तरफ से तुम्हें मशवरा देता हूँ, मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है, ऐसा कर लो। फिर क्या बोले हैं, लेकिन इस मसले के अंदर, ये प्रॉब्लम के अंदर तुमना को कौन तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाए तो ये प्रॉब्लम कैसा करना, ये मसला कैसा, पर वो सुनाए तो तुम्हें क्या करो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ले लो, मेरी बात छोड़ दो, वो बात मालूम होने तक मेरी राय है, मेरा मशवरा, ऐसा कर लो, तुम्हें अमल कर लो, करको बताए। लेकिन फिर क्या बोले हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो मेरी बात उठा कर दीवार पर मारो, मेरी बात छोड़ दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ले लो। अगर ऐसा करते हमारे पूरे मुसलमान तो आज इतने जो परेशानियाँ ही, ये लड़ाइयाँ ही, झगड़े ही क्या भी रहते ना। लेकिन क्या हो गया है, उन्होंने चंद बातें जो अपनी तरफ से बताई ही, उन बातों को लेकर अमल करते चले जाते हैं। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बात अलग है ना, इनकी राय अलग है, तो नहीं भाई हमारे इमाम, हम इनके तरीके में चल। ये एक परेशानी आ गई। अब उसके वास्ते यहाँ एक खास बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो दो शागिर्दा ही, उनके खास शागिर्दा पढ़लियत वाले, उन्होंने बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारे बातें में, मसला में अपने उस्ताद की बात मानते नहीं थे। हमारे उस्ताद ऐसा बोले ही, लेकिन ये सही नहीं है हमारे उस्ताद की बात, असल बात ये सही है। क्यों? इन्हें दूसरे की बात भी जाकर पढ़ते थे। इनके जो छोटे शागिर्द ही, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम मालिक के पास भी जाकर पढ़े ही, इमाम अबू हनीफा के पास भी पढ़े ही, इमाम मालिक के पास, मदीने को आप उनके पास भी पढ़े ही। तो बाद में उन्होंने किताब लिखी, कौन? इमाम मोहम्मद अबू हनीफा के शागिर्द, दूसरे शागिर्द, छोटे शागिर्द, एक किताब लिखी ही, उसका नाम भी मुअत्ता इमाम मोहम्मद, और उसमें उन्होंने 1000 चिल्लर हदीसा लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब आज हमारे पास है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। इसमें कितने हदीसा हैं? तकरीबन 1000। ये ज़रूरी बात है तो इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये किताब है उनकी, उर्दू का तर्जुमा भी है। 1000 चिल्लर हदीसा है, 1000 चिल्लर हदीसा उन्होंने किससे लिए ही? असल शागिर्दा को अबू हनीफा के रहमतुल्लाह अलैह के, असल शागिर्द किसके? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। लेकिन हदीसा जो ज़्यादा उन्होंने लिखे हैं किससे लिए हैं? इमाम मालिक के पास हदीसा लिए हैं, उनके पास भी पढ़े हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास भी पढ़े हैं। और जब ये किताब उन्होंने लिखे हैं, ये मुअत्ता इमाम मालिक किताब है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद वो किताब लिखे हैं, इसमें 1005 हदीसा में 850 हदीसा से ज़्यादा इमाम मालिक से लिए हैं। मुझे इमाम मालिक बोले, उनको उनके उस्ताद बोले, उनको सहाबा बोले, उनको नबी साहब बोले, तो ऐसा नामा सनद के साथ पूरे भी उन्होंने लिखे हैं। लेकिन जिन उस्ताद के पास उन्हें ज़्यादा लगले को थे, ज़्यादा पढ़े, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनसे खाली 13 हदीसा लिखे हैं। 13, सिर्फ 13, 1005 में 13 हदीसा उनसे लिखे हैं। अब उस्ताद जो पढ़ाए हैं, मेरे उस्ताद बोले, उनको उनके उस्ताद बोले, उनको सहाबा बोले, उनको नबी साहब बोले, तो सनद के साथ बोलना ना, तो उसमें खाली 13 बातें लिखे हैं, 1005 बातें। बाकी की 850 मैं पूरी किताब छान डाला है, एक मरतबा पूरी किताब गिना हूँ किससे हदीसा कितने लिए हैं। तो 850 हदीसा से ज़्यादा इमाम मालिक से लिए ही हूँ। इमाम मालिक मुझे बोले, मेरे उस्ताद, उनको उनके उस्ताद बोले, उनको उनके उस्ताद बोले, उनको नबी साहब बोले, तो ऐसा पूरा सनद के साथ लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या मालूम होता है कि असल जो उस्ताद इनके बड़े थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह,
तो उनके भी पढ़े उनके पास भी, लेकिन उनकी रिवायत के साथ हदीसा लिखे नहीं, सिर्फ 13 लिखे हैं, बाकी के पूरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर पढ़े, उनसे लिखे। तो ये एक हदीस की किताब है। हमारे तक दीन कैसा आया तो इस तरीके से, इस जरिए से आया। अच्छा, अब उनके बाद अब 3 इमाम हुए। अब शागिर्द जो है इन्होंने ज़्यादा इख्तिलाफ करते हैं, उस्ताद की बात मानते नहीं। हमारे उस्ताद ऐसा बोले हैं, लेकिन मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा है, अल्लाह का हुक्म ऐसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐसी है। हमारे उस्ताद बोले ऐसा नहीं, उसके लिए बल्ला की मिसाल है। अब जो अबू हनीफा को मानने वाले हमारे हनफी भाइया जो हैं, उन्होंने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमाम साहब जरे मसाइल में ऐसा बोले हैं, लेकिन हमारा फतवा को साहिबन को तो उनके शागिर्द रहे ना, उन्होंने बोले इसका हमें सुनती, हम इमाम साहब की बात नहीं, इमाम साहब की बात हमें सुनते नहीं। इमाम साहब कर बोलते हैं, लेकिन इमाम साहब की बात मानते नहीं। कैसा? एक मिसाल आपको कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाया है कि बच्चा माँ के पेट में रहने का वक्त और उसका दूध पिलाने का वक्त, दो भी मिला को 2.5 साल। और एक जगह अल्लाह कुरान के अंदर क्या फरमाया कि बच्चे को दूध पिलाने का वक्त 2 साल तक को बोले। इमाम साहब क्या बोलते हैं, बच्चे को दूध पिलाने का टाइम 2.5 साल लगते हैं, उनका फतवा, उनकी राय। तो शागिर्द क्या बोले, नहीं, हमारे उस्ताद की बात ठीक नहीं। क्यों? अल्लाह कुरान में 2 साल बोलता है, हौलैनी कामिलैनी, 2 साल दूध पिलाओ कहता है अल्लाह का हुक्म। हमारे उस्ताद 2.5 साल कर बोलते हैं, हमारे उस्ताद की बात सही नहीं। तो फिर शागिर्दान उनके उस्ताद की बात को रद्द करना, ऐसे बल्ला के बात, ऐसे बल्ला के बात। तो उस हिसाब से उनके शागिर्दान बहुत सारी बातें उनको लिए नहीं, क्यों? सही नहीं है। उन्होंने बोलते, हमें बोलते नहीं, हमें बोलते नहीं, उनके शागिर्दान बोले। अच्छा, और दूसरी बात, चौथे जो इमाम हैं, 4 इमाम अगर बोलते हैं ना लोग, हमें भी मानते हैं 4 इमाम हैं। क्या उन इमाम का तो उस्ताद अपने शागिर्दान दूसरे के पास उन्हें इल्म हासिल करे और दिन का इल्म अपने शागिर्दों को पहुँचाए, वहाँ से उस्ताद के पास से लिए शागिर्दों को पहुँचाए। तो ये पहुँचाने के इसमें चौथे नंबर पर जो है इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इन्हों कहाँ वाले, इन्हों भी ज़्यादा मक्के और मदीने में वक्त गुजारे और इन्हों भी एक किताब लिखे हैं, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल। ये किताब मिलती है और तकरीबन उन्होंने हदीसा कितने लिखे हैं, 20 को 2000 या 20 को 3000 हदीसा लिखे हैं, बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने अपनी मर्जी से ज़्यादा बोले नहीं। उन्हें क्या करेंगे, सहाबा से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, ऐसा उन्होंने लेकर उन्हें क्या करेंगे, उन्होंने एक किताब लिखी। तो इस तरीके से दीन हमारे पास तक आया। तो इनके बाद ये 3 किताबें लिखने वाले के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या करे, मैं अल्लाह के नबी के बातें, दीन के बातें सुन को उन्होंने उस्ताद के पास, और उन्होंने बहुत ज़्यादा और सख्ती के साथ, स्ट्रिक्ट सख्ती के साथ तहकीक करे। तहकीक करना है तो मालूम करना, ये बात सही है क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं क्या, ये बात ऐसी है क्या, तहकीक कर तो उन्होंने तकरीबन बोलते हैं 4 लाख हदीसा याद थे उनको। कितने हदीसा? 4 लाख हदीसा, लेकिन उसमें से 4000 हदीसा लिखे। और वो किताब है बुखारी शरीफ। ये बुखारी शरीफ आज सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के आलिमा क्या बोलते हैं, कुरान के बाद अगर कोई सबसे सच्ची और सही किताब है तो बुखारी शरीफ। लेकिन इन्होंने बाद में पैदा हुए, इन्हें क्या है, बाद में पैदा हुए। किसके? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इनके 4 जना के बाद इन्होंने पैदा हुए, इन्होंने भी हदीस की किताब लिखे। और ये किताब का दर्जा सारी दुनिया, सारे मदरसा में, दुनिया में कितने मदरसे हैं, वो सारे मदरसा में, वो कैसा भी मदरसा हो, बरेलविया का मदरसा हो, देवबंद का मदरसे में हो, अहले हदीस के मदरसे में हो, मक्के में हो, मदीने में हो, सारी दुनिया में क्या बोलते हैं कि सबसे कुरान के बाद सबसे सही किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। इसमें इन्होंने 7000 चिल्लर हदीसा लिखे हैं
उसमें मुकर्ररात का थी, मुकर्रर का तो डबल एंट्री दो दो बार, एक ही हदीस से दो मसले आती, वज़ू का मसला भी आता है, नमाज का मसला भी आता है समझो, तो वो हदीस को वज़ू के बयान में भी लिखे हैं, नमाज के बयान में भी लिखे हैं, तो वो हिसाब से डबल एंट्रीज को अगर निकाले तो 4000 चिल्लर हदीस इन्होंने लिखे, 4 लाख में से 4000 फुल एकदम इंक्वायरी फुल ज़्यादा तहकीक कर कर देखो इन्होंने लिखे। इस तरीके से दीन हमारे पास आया है, किस तरीके से? बुखारी के। तो इनके ज़माने में इनके एक शागिर्द थे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने क्या करेंगे, इनके पास भी पढ़ेंगे और दूसरे के पास भी पढ़ेंगे और उन्होंने भी हदीसा जमा करेंगी, तो उन्होंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस की किताब लिखी, बुखारी मुस्लिम। तो आज कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा सही किताब हम जो है सही बुखारी सही मुस्लिम, ये सही बुखारी है, ये सही मुस्लिम है। ये दो किताबों में अगर कोई बात है तो फौरन सारी दुनिया मान लेती है, फौरन सारी दुनिया के मुसलमान मान लेती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं और मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं, उलमा जो हैं आलिमा, वो पूरे मान लेते हैं। अच्छा, इनके बाद या इनके ज़माने में और एक 4 किताबें लिखे हैं। इमाम तिरमिज़ी जामिउ तिरमिज़ी की एक किताब लिखी, तो इन्होंने इमाम बुखारी के शागिर्द, उनके पास भी पढ़े हैं, दूसरे के पास भी पढ़े हैं, हदीस हमको जमा कर को इन्होंने भी लिखे हैं, जामिउ तिरमिज़ी एक किताब। अच्छा, उसके बाद और एक इमाम हैं इमाम अबू दाऊद, उन्होंने भी एक किताब लिखी हदीस की किताब, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले क्या करे वो किताबें रिकॉर्ड करके लिखी। उनके साथ साथ इमाम नसाई उनके नाम अलग हैं, ये किताब के नाम से फेमस है, एक जने। तो 3 हुए, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई और इमाम इब्ने माजा, ये भी एक किताब हदीस किताब। तो ये 4 किताबें वो बुखारी मुस्लिम के बाद का दर्जा रखने वाले 4 किताबें, बुखारी मुस्लिम फर्स्ट सेकंड है, उसके बाद ये 4 किताबें, ये 6 किताबों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सिहासित्ता। ये किताबें क्या बोलते हैं? सिहासित्ता, यानी 6 सही किताबें। ये 6 सही किताबें एक किताबा में है, पहले इसे दर्जा दी कौन? सारी दुनिया के मुसलमान। देवबंद में भी इस किताबें पढ़ाती, दौरे हदीस में आखिरी साल में ये पूरे किताबें पढ़ाती, उमराबाद में जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ भी वो पढ़ाती, मक्के में वो पढ़ाती, मदीने में, सारी दुनिया में 6 हदीस की किताब। इसके अलावा ये 6 किताबों के अलावा वो 3 इमाम के किताबें हैं। कौन से? इमाम मालिक की किताब है, इमाम शाफी की किताब है और इमाम अहमद इब्न हंबल की एक किताब है, वो बड़ी मोटी किताब है। इसमें से भी उन्होंने 6000 7000 ऐसे हदीसा लिखे एक जने, लेकिन उन्होंने 20 को 2000 या 20 को 3000 से ज़्यादा हदीसा उन्होंने लिखे, उनकी एक किताब है। तो वो 3 हुए, ये 6 हुए। उसके साथ साथ इनकी एक किताब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द की एक किताब। तो 10 किताबें शुरू के ज़माने के लोग लिखे। ये पूरे किताबों में हर किताब में भी ये बात होती है क्या? एक हदीस बोली, वो हर इसमें भी हर किताब में वो हदीस होती है। कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को आए, मस्जिद बनाए, अजान शुरू हुई मदीने में आकर, वो अजान का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को दिए, अरे बिलाल तुम्हें अजान दो। तो ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और काम। तो ये बुखारी में है हदीस रहती है, वो वाक़िया चला ऐसा बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई, इब्ने माजा, इस तरीके से सारे किताबों में, इमाम मालिक की किताब में, इमाम मोहम्मद की किताब में, इमाम शाफी की किताब में, इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब में, इस तरीके से वो बात हर किताब में भी है। तो इनके अलावा ये 10 अदमिया के अलावा और दूसरे एक 20 को 7 अदमिया लिखे किताबों, तो पूरे तकरीबन 30 पर 7 हदीस के किताबें ही। तो हमारा दीन हमारे पास जो आया है कुरान मजीद के साथ साथ ये किताबों के ज़रिए हमने आपको दीन पहुंचा है। ये लोग दीन का काम करके चले गए हैं। अच्छा, अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न की बात है। क्या कन्फ्यूज़न की बात है? ये लोग क्या करें हैं, सही बातें जो उनको मालूम हुए वो भी लिखे हैं,
बुखारी मुस्लिम तो सही बात हम लिखे। अगर किसी बात में डाउट आता, शक आता, वो बात को लिखे नहीं, नको भाई ये बात हमें लिखते नहीं। बात के दूसरे मुहद्दिसीन किराम क्या करेंगे, उनके ज़माने में जो सही बातें थे वो बात में लिखे हैं, और चंद बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, सो बातें दूसरे आदमी बोल डालते हैं, वो बात पब्लिक में फैलती है, लोग आप सुनते ही। तो इनको तहकीक करके क्या करेगी कि भाई ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, पब्लिक में चलती है वो बात, लोग बोल एक दूसरे को बोल लेते हैं और अमल भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं। तो उन्होंने हदीस की किताबा में वो बात को भी लिखे हैं, सही हदीस को भी लिखे हैं, जो सही नहीं है वो बात को भी लिख कर उन्होंने क्या बोले हैं, ये बात सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, उन्होंने लिख डाले। हमने तो देखे नहीं, हमें तो मालूम नहीं, हमें 1400 साल बाद वाले वो ज़माने में क्या चला, क्या ऐसा गुजरा, हमें तो देखे नहीं, लेकिन वो बात हमारे तक मालूम होने का जरिया क्या, ये किताब, ये 30-7 किताबा, तो वो किताबों के जरिए हम अब तक बात आई है। तो वो ज़माने में थे, ये बात यहाँ फैलती है या ये काम लोग करते ही, ये बात सही नहीं है, ये बात कमज़ोर है, ये बात ये बोलने वाला उस हदीस से, उस हिसाब से ज़ईफ़ हदीसा करनी, ज़ईफ़ हदीसा। और एक बात क्या है, हदीसा में, हदीसा के बल्ला के किस्म है नामा, उसमें मैं खाली 2-3 बोलता बस, ज़्यादा नहीं। एक आकर सही हदीस, एक आकर ज़ईफ़ हदीस, यानी बोलने वाला बराबर नहीं आदमी, ये आदमी बोलने वाला बराबर, उसे भरोसे के लायक नहीं है, उसे बोलती। और एक लास्ट दर्जा मौजू हदीस का थी। मौजू हदीस का तो क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, इन्हें अपनी तरफ से बना कर बोलाता है, झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बोली करते, बीच में आदमी का नाम लगा कर बोलाता है, तो इसे क्या करती, बोलती मौजू हदीस। तो वो मौजू हदीस हम भी इन्होंने किताब में लिखी। कौन, मुहद्दिसीन किराम, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाए, जगह ज़रूरत है, क्यों, इतना बड़ा काम कर को गए ना। तो उन्होंने वो भी लिख डाले ही मौजू। मौजू का मतलब क्या, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, ऐसा करें नहीं, ये दूसरे कौन की कर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगा डालते ही, ये झूठ है, झूठ है, उन्होंने लिख डाले। तो एक अच्छा काम कर को गए हैं इन्होंने मुहद्दिसीन किराम, एक बहुत अच्छा काम हमारे लिए सहूलत बना कर गए। अगर उन्होंने ये नहीं लिखते, ये सहूलत नहीं बनाते, तो खाली किताब में लिख डालते, तो हमें क्या समझते हैं, सारी बातें सही है तो मान लेते, सारे बातें सही है तो हमें मान लेते, लेकिन उन्होंने पूरा भी बता कर चले गए हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है उनका। पहले हमारे ऊपर किसका एहसान है, अल्लाह का एहसान। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखा को गए। उसके बाद सहाबा का, वो दीन को ताबीन तक पहुँचाए, ताबीन का ताबीन ताबीन पहुँचाए। तो उनके पास से ये मुहद्दिसीन किराम दीन की हिफाजत करेंगी, रिकॉर्ड करेंगी। अगर उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते तो आज कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना मालूम होता ना, हमना को मालूम ही होता ना। कौन किसके दिल में क्या आया उन्हें कर लेता, चल जाता और बोलता ये भी दिन है, ये भी दिन है, ये भी दिन है, हर बात दिन में हो जाती। लेकिन उन्हें क्या करेंगे, दीन को हमारे तक रिकॉर्डिकल पहुँचा कर गए हैं। अब यहाँ एक बात बोलकर बात खत्म कर, क्या है, एक ज़माना ऐसा आ गया था, ये किताबें लिखने से पहले के ज़माने में, उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किताबें लिखने से पहले ऐसा आ गया था, हर आदमी अपनी अपनी एक बात बोलता और अपनी बात सही करके ये करता। तो उस वक्त नमाज, रोज़ा, वज़ू करना, ये चीज़ों से भी बढ़कर अक़ीदे के बारे में बिगाड़ आ गया था। अक़ीदा का तो क्या, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, फरिश्ता के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, अल्लाह कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये बहसा शुरू कर लेकर मैं क्या करे, उनके हिसाब से जो बात उनको समझ में आई, कुरान में तो है, कुरान पढ़ को समझना था उन्होंने, लेकिन क्या करें, अपने अपने हिसाब से एक ग्रुप बनाते हुए चल गए। और एक आदमी क्या तो बोला तो उसकी बात को उन्होंने भरोसा कर को उन्होंने एक ग्रुप, उन्होंने एक ग्रुप, इन्होंने एक ग्रुप, ऐसा बहुत सारे ग्रुप हो गए ये किताब लिखने से पहले। और वो ग्रुपा की वजह से क्या हुआ, हर आदमी अपने उस्ताद को एक नमूना मानता, हमारे उस्ताद बोले भाई ये तरीके में चलने वाला, मैं ये तरीके में, तरीके में। अब कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत समझ में आया नहीं। बहुत सारे इमामा हो गए, बहुत सारे ग्रुपा हो गए थे। तो उस वक्त भाई ऐसा रहा कि परेशानी ज़्यादा हो जाती है।
लेकिन सही तरीके में हमें चलना, सही तरीके में हमें अमल करना हो तो कैसा, तो उस वक्त क्या बोले, एक काम करो भाई, अकीदे के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह कौन, कहाँ है, कैसा है, जन्नत, दोज़ख, तकदीर, फरिश्ते, किताबा, कुरान जैसा आसमानी किताबा, पैगम्बरा, इनके बारे में ये 4 जने की बात सुनो। किसकी 4 जने की? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 इमामा में से को से आदमी करने भी तुम्हें जाको ईमान के बात सीखे तो करेक्ट ही, बाकी के बल्ला के जो इमामा ही उनके पास जाओ न को, उनके अकीदे बराबर नहीं ईमान के बारे में, ईमान के बारे में इन्हों बराबर ही वो बोले। तो अच्छा लेकर के उन्हें क्या करे, ये 4 अध्याय में से जिनके पास जिसे पसंद आया उन्होंने उनके पास गए और ईमान के बात सीखे, ईमान के बारे में उन्होंने पूरे भी सही ही। लेकिन हमारे अब्दुल कादिर जिलानी जो ही, जिनको महबूब सुबानी नाम से याद करते हैं, गौस से पाक करके जो बोलते हैं, गौस करके लफ्ज़ बोलना ही नहीं। गौस का माना मदद करने वाला अल्लाह, उन्हें मदद करने वाले नहीं। ये हमारे नादान मुसलमान, बेइल्म मुसलमान उनको गौस रखता है। और एक आपको पाक बोले सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के सिवा कौन पाक नहीं। हमें सब भी क्या ही कमज़ोर ही, हमारे अंदर वो पाकी नहीं है। क्यों? कमी है हमारे अंदर, नींद आती है, हम ना कुछ पेशाब आता है, पैखाना आता है, तो इससे क्या है, हमें पाक काम हो सकते हैं। पाक अगर आईबान से पाक सिर्फ अल्लाह की ज़ात, वो अल्फाज इन्हों महबूब सुबानी को लिख डाले ही, और ये महबूब सुबानी वो भी एक लक़ब दिया ही। असल उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। उन्होंने क्या करे ही, ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये सही मुसलमान नहीं उन्होंने अगर लिख डाली किताब, गुनियतुत तालिबीन करो ने किताब लिखे हैं। उन्होंने कौन से इमाम को मानने वाले को तरीक़े में चलने वाले, इमाम अहमद इब्न हंबल, 4 में इमाम है ना अहमद इब्न हंबल, उनके तरीक़े में चलने वाले, और किताब में उन्होंने लिखे हैं हमारे इमाम अहमद इब्न हंबल, मैं इनके तरीक़े में चलता हूँ। और इमाम अबू हनीफा जो नोमान बिन साबित हैं, उन्होंने सही अकीदे वाले नहीं, उन्होंने दोज़ख के फ़िरक़े ही ना, वो फ़िरक़े में एक फ़िरक़ा आकर लिख डाले उन्होंने। पर लेकिन हमारा तो एक यकीन है, हमारा तो अकीदा क्या है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सही अकीदे वाले थे। लेकिन उनकी किताब नहीं होने की वजह से, ऐसा हदीस की कोई भी किताब नहीं होने की वजह से परेशानी है। लेकिन उन्होंने किताब लिखे ही अल फ़िक़्हुल अकबर करके एक छोटी किताब लिखे ही। वो किताब नेट में भी है, तुम्हें गूगल में मारे तो भी किताब तुमना को मिलती है, और जैसे मदरसे में पढ़ाती। वो किताब कहती है, तो वो किताब पूरी भी मेरे पास यहाँ है। वो किताब मैं रात को नेट में से डाउनलोड करा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लिखी कहते हैं ना किताब, वो क्या किताब को तो अल फ़िक़्हुल अकबर करके लिखे हैं। कितने पेजा है वो? 8 पेजा है, छोटी किताब, एक पेज, एक वरक़ में 2 पेजा, 1 2 3 4 इधर उधर, तो 8 पेजा की किताब उन्होंने लिख को गए हैं। ये लोग हम बोलते हैं ये उन्होंने लिखे ही। कौन लिखे हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो हिसाब से ये किताब पढ़ को देखे तो उनका अकीदा दुरुस्त है। अकीदा का तो क्या, अल्लाह के बारे में ईमान उनका दुरुस्त है, ये जो लिखे हैं। अब दूसरे इमाम जो किताबें लिखे हैं, वो देखो इनके शागिर्द ये किताब लिखे हैं, इमाम मोहम्मद, इनके अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इन्होंने इतनी मोटी किताब हदीस के लिखे हैं। लेकिन उन्होंने हदीस की किताब क्या भी लिखे हैं, ये इमाम बुखारी भी लिखे हैं किताब, हदीस की किताब, तो मैं आपको दिखाया ना। तो इस तरीके से इतनी मोटी किताब, ये एक जिल्द है उर्दू तर्जुमे के साथ, ऐसे 3 जिल्दा ही बुखारी शरीफ के। तो ये हदीसा में क्या है, ये इंसान को पैदा है जब से लेकर मरे तक, फिर को क्या क्या ज़रूरत पड़ती, कौन सा काम कैसा करना, वो पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ही। तो वो सारे बातें इन हदीसा में लिखे ही, ये किताबों में सारे बातें। और मरने के बाद खबर में क्या होता है, जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, उसमें कैसा जाती है आदमियाँ, कुल सिरात कहाँ है, सिफारिश नबी साहब में कैसा करती हैं, हौज़े कौसर कहाँ है, हिसाब किताब क़यामत दिन कैसा होता है, अमल नामा कैसा मिलता है,
वहाँ हिसाब अलग रखा है, वो सारे बात इन्होंने लिखे ही। कौन? ये मुहद्दिसीन किराम। लेकिन उन्होंने सनद के साथ लिखे ही, मुझे कौन बोले उनको कौन बोले उनको कौन बोले, ऐसा इन्होंने क्या भी वैसा लिखे नहीं। इन्होंने क्या करे ही, एक 10-15 पॉइंट बोले ही, मेन पॉइंट सिंपल में सुना दूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले ही, ईमान के बारे में। ईमान का तो क्या, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह एक है कर को मानना, अल्लाह है कर को मानना, फर्स्ट पॉइंट। दोमा वहदानियत, यानी अल्लाह एक है। तीसरा पॉइंट, अल्लाह के सिफात, अल्लाह के पावर्स क्या क्या हैं वो बोले ही। उसके बाद चारवें पॉइंट क्या बोले हैं, अल्लाह की जो सिफात हैं, सिफात पावर्स अल्लाह के, वो क्या चंद दिन रहती है फिर ख़त्म होती है? नहीं, वो हमेशा रहती। अल्लाह सुनता है, कब तक सुनता है? हमेशा रहती है वो आदत। अल्लाह की ताकत, चंद दिन सुनता है, चंद दिन सुनता नहीं। अल्लाह रिस्क देता है, कब तक देता है? हमेशा उसकी ताकत वो ख़त्म होती नहीं ताकत। तो उसके बारे में लिखे हैं। कुरान के बारे में लिखे हैं और कुरान के सिफात के बारे में लिखे हैं। तो कुरान अच्छी किताब, सही किताब अल्लाह इंसानों को दिया है। उसके बाद तकदीर के बारे में बोले हैं, तकदीर के बारे में कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तकदीर लिखा है। उसके बाद अल्लाह इंसानों को कैसा पैदा करा है, फितरत के मुताबिक पैदा किया है, वो एक पॉइंट बोले ही। उसके बाद अच्छे कामों से, नेक कामों से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह चाहत करता है ऐसे बंदा को, नेक कामा करने वाले को, और बुरे कामा करने वाले से अल्लाह नाराज़ होता है, वो एक बताए हैं। फिर पैगम्बर जो ही उन पाक ही, पूरे पैगम्बर, उनके अंदर कोई आयब नहीं, इसमत अम्बिया कहते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी चंद बातें लिखे हैं उसमें, और सहाबा के बारे में चंद बातें लिखे हैं। उसके बाद एक आदमी बुरे कामा करे तो उन्हें इस्लाम से बाहर क्या भी जाता नहीं, उसे काफिर करके बोलना नहीं। क्या तो छोटे मोटे गलतियाँ करे तो उन्हें मुसलमान से भी गलतियाँ हो सकती, गुनाह हो सकती। और अहले सुन्नत के अक़ीदे क्या हैं, और पैगम्बरां के करामता, ये मौजूदान के बारे में, अल्लाह के नेक बंदे से भी कुछ करामत हो सकती, वो एक पॉइंट में लिखे हैं। फिर आखिरत में हमें अल्लाह को देख सकती। ये सब कहाँ से लिए? इन्होंने कुरान से लिए, लिख को। उसके बाद ईमान का जितना वो बोले हैं, ईमान और इस्लाम में क्या कनेक्शन, वो एक पॉइंट रखे हैं। हमें अल्लाह को कैसा पहचानना, वो एक पॉइंट रखे हैं। पैगम्बरां की सिफारिश कैसा होती है, और हौज़ कौसर मीज़ान तराजू में तोलता है ना अल्लाह कुरान में बोले, वो बातें लिखे हैं। यानी कुरान हदीस में ये जो बातें इनके हिसाब से जरा समझे हैं। फिर को जन्नत और दोज़ख इनके बारे में जरा बोले हैं, खबर के अज़ाब के बारे में बोले हैं, और अल्लाह से करीब होना कैसा हमें। उसके बाद कुरान के आयतां के तफसीर के बारे में लिखे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, कितने बच्चे, वो एक पॉइंट लिखे हैं। फिर लास्ट पॉइंट है क़यामत के निशानियाँ। ये 10-15 पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक किताब छोटी लिखे हैं। ये किताब मैं लिखे ना हूँ, उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने लिखेंगे को नेट में भी है और लाइब्रेरी में मिलती है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले ही, दिन की बातें क्या बोले ही, तो ये पहुँच जाए उम्मत को। लेकिन सारे काम वो सा काम कैसा करना है, कैसा मालूम होता है? कैसा मालूम होता है? हम लोग को रिकॉर्ड है तो हमें मालूम कर ले सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं तो हमें मालूम कर ले सकते नहीं। और एक बात क्या है, जो 6 सिहा सित्ता का जो किताबें, हदीस की किताबें हैं, ये 6 किताबों वाले भी अल्लाह के अजमा से हदीसा लिए ही। सो एक जने भी इमाम अबू हनीफा से लिए एक बात भी किया। लोग पहले के बड़े इमाम हमारे अजमा सब क्या बोलते हैं, हमारे बड़े इमाम, इमाम आज़म उनो सबसे बड़े इमाम, उनका तरीक़ा सारी दुनिया में फैल गया है, तो ऐसा कर बोलते हैं। लेकिन ये हदीस के 6 किताबा में एक जगह भी इनका नामिश नहीं है। हज़ारान के अजमा के नामा ही इसमें, ये 6 किताबा में, बुखारी मुस्लिम जो सही किताबा हैं, और बाद के अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, 6 किताबा में एक जगह भी इनका नामिश नहीं है, नलियत भी। ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इनकी तरफ से हम ना पहुँची अगर तो एक जने भी लिखे नहीं। लेकिन हमारे मदरसा में हमारे अजमिया सब क्या हैं, ज़्यादा हमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तरीक़े में चलना, उनके इसमें चलना कहते हैं। चलना का तो उसके लिए रिकॉर्ड होना ना, मानने के लिए तैयार ही हमें, रिकॉर्ड नहीं है। नबी साहब ऐसा बोले, ऐसा करेगा तो हदीस की किताब नहीं है उनकी। अगर रहती है तो हमें लेते,
किताब इसमें है। अब जो किताब है उनकी अल-फिक़्हुल अकबर सिर्फ 8 पेज की एक छोटी किताब है। इसका तर्जुमा भी उर्दू में है। तो हमारे आलिमा उसका तर्जुमा करी, फिर उसके मतलब भी लिखे हैं, माना मतलब है उर्दू में। ये भी किताबें भी मिलती। मैं जो आपको दिखाया ये सिर्फ ओनली अरबिक मैटर, अरबिक का वो मैटर। मैं अरबी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, मुझे अरबिक मैटर है तो बस हमें समझने के लिए। लेकिन आप लोग उर्दू पढ़ कर समझना है तो उसका उर्दू तर्जुमा भी आलिमा करे ही, वो भी मिलता है। अच्छा, अब एक बात बोलकर बात खत्म करता हूँ। क्या अल्लाह कुरान के अंदर फरमाया दीन के अंदर गुलू करो। गुलू को तो बड़ा चढ़ाक बोलने का, हकीकत कहता है कि उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ाक बोलने का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना करी कि देखो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा तो बोलो मुझे, अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ, अब्दुहू व रसूल हूँ, अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल। इतना बोलो, मुझे बड़ा नको। कैसा बड़ा नको? नबी साहब बोले नसारा लोग जो ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कर कैसा बोल डाले, बढ़ा डाले दर्जा, वैसा बड़ा नको मेरा दर्जा। मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ रखो, ज़्यादा बड़ा नको, गुलू करो नको, गुलू को तो ओवर। लेकिन हमारे मुसलमान 2 अजमियाँ के बारे में बहुत गुलू कर डाले। कौन है? हमारे बरेलवी हजरात जो जरगा पार्टी हैं, उन्होंने महबूब सुबहानी के बारे में इतना उनकी तारीफ़ करे, उनकी करामत ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले। उन्होंने अम्मा के पेट में होकर कुरान सीख लिए थे। अम्मा के पेट में जब आदमी आता है वो सलाम किया तो वो सलाम सुनकर जवाब पैदा हो 4 साल के बाद दोबारा उन्हें आया तो उसे 2 बार जवाब दिए। ऐसा किताबों लिख डाली हमारे मुसलमान भाई। और उन्होंने उस दिन उनके ज़माने में चांद नजर आया नहीं, अब समा रोज़ा ढना या नहीं ढना तो उन्होंने महबूब सुबहानी छोटे बच्चे, छोटे महीने के 2 महीने के अंदर के, उन्होंने दूध पिए नहीं करते। क्या तो उनको चांद दिख गया मालूम होगा अगर को, ये एक लिख डाले ही उनके बारे में किताबें लिख डाले ही ज़ैनुल मजालिस कर को, वो पढ़ को सुनाते ही। हालांकि उन्होंने अच्छे आदमी थे, उन्होंने क्या वैसा करे नहीं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने गुलू कर डाले। फिर क्या करे, 12 साल पहले कश्ती डूब गई थी, आदमियाँ शादी गुजार आते थे, आदमियाँ सब दरिया में डूब को समंदर इसमें नदी में डूब गए थे। तो इन्होंने कश्ती को निकाल डाले, 12 साल के बाद पूरे आदमियों को जिंदा कर डाले। वो एक उनके बारे में झूठ बोले ही। एक बार उनके नाना उनको क्या कि मारने के लिए भगा लिए तो खबरस्तान में जाकर उठो उठो हमारे नाना मुझे मारने आते तो मुर्दे पूरे उड़ गए। ऐसे कहानियाँ। और बोलते बोलते क्या कर डाले ही। फिर एक औरत रोती थी और वो क्या माँ रोते हैं ना, तो मेरा बच्चा गुजर गया है। तो वहाँ इजराइल खड़े करते, इन्होंने पूछे भाव सुबहानी वो बच्चे का दम दे डालो, वो माँ रोती है बच्चे को छोड़ डालो। तो नहीं मैं देता नहीं बोले। इन्होंने जुल्म से खरीदने के लिए गए हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आसमान में गया तो इन्होंने आसमान में उड़ को जाको वो थैली ले लो को उस दिन के तेजा मारे से होते जहाँ पूरी थैली उड़ना डाले, पूरे आदमी जी गए। तो ऐसे गुलू यानी जो सही नहीं है, झूठे बातें ही वो उनके नाम के साथ उन्होंने बोले नहीं मैं ऐसा कराया कर को, उन्होंने करे भी नहीं, उन्होंने बोले भी नहीं। लेकिन इन्होंने हमारे मुसलमान भाइयाँ बे इल्म, कम इल्म, नादान मुसलमान भाइयाँ क्या करेंगे, उनकी करामता उनको एक वली का दर्जा देकर क्या कर डालेंगे, बड़ा 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 बोले। लास्ट को क्या कर डालेंगे, एक बात सुने तो कैसा कम इल्म आदमी भी अफसोस करता है। क्या अल्लाह भी महबूब सुबहानी दोए ने भी अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में चल को जाते थे, वहाँ एक मौत का छिटला पड़ा था, उसके ऊपर अल्लाह का पाँव पड़ गया, अल्लाह फिसल गया, अल्लाह को दिशा नहीं गिर जाते स्टेम को, महबूब सुबहानी हाथ पकड़ को खींचे अल्लाह को, अल्लाह गिर जाते हैं को अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। जब अल्लाह बोले अब्दुल कादिर आज से तुम्हारा नाम दस्तगीर, जाओ। दस्तगीर को तो हाथ पकड़ने वाला, दस्ते को तो हाथ है, गिर को तो पकड़ लेने वाला। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के मुझे बचा ही, मैं गिर जाता था, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह गिर जाता, इनको बचाए। जब से उनका नाम दस्तगीर पड़ गया आपको, ये किताबा में लिखे ही, खाली मुँह से बोले तो क्या कर बोले जा, किताबा में लिखो प्रिंट कर को बेचते ही मुसलमान। उनको इस तरीके से बढ़ाए, इसे अब्दुल कादिर जिलानी को इस तरीके से बढ़ाए। और ज़रियत में क्या करेगी, इमाम अबू हनीफा को ऐसा बढ़ाए, हमारे मुसलमान कैसा बढ़ाएंगे, उन्होंने भी किताबें लिख डालेंगे बहुत सारे बातें उनके ताल्लुक से। हालांकि उन्होंने ऐसा बोले नहीं, उन्होंने करे नहीं, लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल डालेगी। क्या बोल डालेगी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ईशा के वजू से सुबह की नमाज 40 साल पढ़े। ऐसा हो सकता नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े नहीं। इंसान सोता है हर दिन, सोया तो वजू टूट जाता है, रात में पेशाब आता है, कभी ना कभी 40 साल में पेशाब आता है नहीं आता है, वजू टूट जाता है।
बीवी है, बीवी के साथ जिंदगी गुजारे तो वजू क्या उसूली चले जाता है। रात में खलाए हाजत तो पैखाना आया रहता है रात में, कंटिन्यू ऐसा हो सकता नहीं। अब हमारे उलमा हमारे आलिमा में क्या करे ही उनका दर्जा बढ़ाने के वास्ते ये लिख डाले, फज़ाइल अमल में भी है ये वाक़या लिख डाले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज़ पढ़े, ऐसा हो सकता नहीं। तो और क्या बोलना रही, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनको इतनी करामत दिया था कि इंसान नबी साहब बोले ही वजू करे तो गुनाह चले जाते, छोटे गुनाह जाते, सगीरा छोटे गुनाह, बड़े गुनाह जाते नहीं। बड़े गुनाह के लिए अल्लाह कुरान में क्या बोले, तौबा करना। नबी साहब भी बोले तौबा करना। तौबा का तो क्या, अल्लाह से माफ़ी मांगना, शर्मिंदा होना, अब आइंदा से मैं करता नहीं अल्लाह से वादा करना, इसे बोलती तौबा। जब वो बड़ा गुनाह माफ़ होता है वो भी अल्लाह चाहा तो, नहीं तो नहीं। ये वजू से सिर्फ छोटे गुनाह माफ़ होती। नबी साहब बोले यूँ क्या करे ही हमारे आलिमा अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जोड़ डाले ही। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वजू करते थे तो वो गुनाह धुल के जाते थे, वो गुनाह करे वाले को इन्हों बोलते थे क्या करो बाप तेरे गुनाह बड़े बड़े गुनाह सब धुले जाते हैं, तो ऐसा ऐसे कामा करना को, माँ बाप की नाफरमानी करना को, ये जिना करना को, बुरे कामा करना को बोलते थे। अल्लाह उनको जो ताकत दे डाला था, झूठी बात, ये झूठी बात। नबी साहब मालूम होता नहीं था कौन क्या गुनाह करे, कौन क्या अच्छा करे बुरा करेगा। जब तक अल्लाह मालूम नहीं कराता या नहीं खुद आप बोलते नहीं, नबी साहब मालूम होता नहीं था। कई को अल्लाह सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छपाने वाला, अल्लाह ये कायब दूसरे को दिखाता नहीं। लेकिन इन्होंने क्या बोलते हैं इनकी इज्जत बढ़ाने के वास्ते उसमें भी इन्हों सपड़ गए ही, ऐसा झूठ बोल डाले ही। छोटे गुनाह माफ़ होते हैं तो वहाँ तक सही थी बात, बड़े गुनाह में माफ़ हो चल जाते थे। वजू करे तो बड़े गुनाह माफ़ होते नहीं। अब उस आदमी जिना करता है वजू करा चल जाना, उनके हिसाब से झूठ बोला तो झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करे, अम्मा को बाप को खूब मार डाला, आप वजू कर तो गुनाह माफ़ हो जाना, ऐसा होता नहीं। वो बोलते देखो वो तारीफ करने के वास्ते क्या बोलते हैं उनको समझ में रखो, जरा बड़ा चढ़ा को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमारे हनफी आलिमा, बड़े बड़े आलिमा, बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े आलिमा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिमा आज भी वो किस्सा बोलते हैं ऐसा, हालांकि बिल्कुल गलत है, हालांकि बिल्कुल गलत है। और एक बात बोलकर बात खत्म होता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह काबतुल्लाह को आए, आपको क्या करे, एक पाँव को खड़े कर नमाज पढ़ेंगे। एक पाँव को तो कैसा वो मामूल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हमेशा भी 2 पाँव से पढ़ती नमाज, एक पाँव से कैसे नमाज है, तो एक पाँव से उठा डाल को ऐसा पढ़ना नमाज, ऐसे तो नमाज नहीं है। तो ये हिंदुओं का तरीका देवला में जाती मंदिर में ऐसा खड़े थे, ये तरीका इस्लाम में नहीं है। नमाज तो दोनों पैरा रखले को खड़ना है। वो किताब का रेफरेंस में बाद में बोल तो मैं पढ़ा हूँ किताब लिखे ही, और एक पाँव को खड़े कर नमाज पढ़े तो अल्लाह के पास से आवाज़ आई, अय अबू हनीफा इबादत करने का सही हक आज तुम्हें, ऐसी इबादत करने को ऐसी इबादत तुम्हें करे ही आज। उन्होंने करे नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ऐसा करे नहीं। हमारे आलिमा उनको बड़ा चढ़ा को उनका मर्तबा बढ़ाने पड़ते। उन्होंने दरगाह पार्टी वाले बरेल में अब्दुल खादिर जी महबूब सुबानी के करामत झूठे सच्चे बोल डाले, सच्चे काम में झूठे ज़्यादा। इन्होंने क्या करे ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बढ़ाने के वास्ते उन्होंने बोले नहीं सो बाता, उन्होंने करे नहीं सो कामा, इन्हों लिख डाल को बोल डाल को उनका मर्तबा बढ़ा डाले। हालांकि इस्लाम में अल्लाह क्या बोलता है, गुलू करना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना करें। तो इस हिसाब से जो दीन हमारे तक आया है वो कैसा आया है, यह कुरान अल्लाह की किताब के ज़रिए से आया है। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और अखवाल यानी उनके काम और उनके बातें हदीस और उनकी किताबों के ज़रिए से हमारे तक आया है। अब हमारे ऊपर क्या ज़रूरी है, आखिरी बात है कि हमें कुरान की बात को लेना और हदीस में जो सही बातें हैं उन्होंने लिखे हादा हदीसुन सहीहुन, यानी ये हदीस सही है, हादा हदीसुन ज़ईफ़ुन, तो ये हदीस ज़ईफ़ है, हादा हदीसुन मौज़ूउन, तो ये झूठी हदीस उन्होंने लिखे हैं। तो हमें क्या करना, आलिमा की जिम्मेदारी सही बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को पहुँचाना, सुन्नत के मुताबिक सही जो ही, मौजू और ज़ईफ़ से बचाना, ये आलिमा की जिम्मेदारी है। और आवाम की जिम्मेदारी, पब्लिक की जिम्मेदारी क्या है कि जो सही बातें हैं वो पूछ को मालूम कर लेना और सही बातों में अमल करना, सही बातों के ऊपर अमल करना, सही तरीके से हमें अमल करना।
तो ये चार इमाम जो सही बोले हैं वो कौन से बारे में बोले हैं? अकीदे के बारे में, अल्लाह के बारे में, क़यामत के बारे में, जन्नत दोज़ख इसके बारे में। बाकी चार इमाम हर मसले में मुत्तफिक नहीं, चार जने भी एक बात को नहीं। क्यों? तीन इमाम एक बात बोलते ही करना करते, एक इमाम नहीं करते, तो हमें किसकी बात लेना? सही बात किसकी है उसकी लेना। लेकिन हमारे आलिमा आवाम को क्या समझाते हैं? नहीं भाई, हमें कोई से इमाम के तो वो इमाम की बात लेना नहीं, हमारे एक इमाम को फिक्स कर लेना, उनके तरीके में चलना। अगर भाई बात सही नहीं है तो कैसा, सही नहीं तो मैं बोझ करना। तो ऐसा पब्लिक को समझाते हैं। सही है तो उनसे बड़ा इल्म हमना नहीं है, उनसे ज़्यादा हमना इल्म नहीं है। इमाम अबू हनीफा का तरीक़ा सारी दुनिया में ज़्यादा लोग अमल करते हैं, हमें वो तरीके में चलना। अगर उनकी बात सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलेगी, और अगर उनकी बात सही नहीं है, हदीस अलग है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अलग है, तो हमें क्या करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेना है। इमाम अबू हनीफा की बात को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आज के बयान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको आसानी के साथ समझ में जैसा आपके सामने बात रखा हूँ, बताया हूँ, और किताबें भी आपके सामने बताया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन दुनिया के सारे मुसलमानों को अच्छी अक़ल अता फरमा, अच्छी समझ अता फरमा, और पहले आलिमों को दीन की जो सही बातें हैं कुरान और हदीस की, कुरान तो सही किताब है, उसके साथ साथ हदीस के जो सही बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, वो खुद भी अमल करने के अल्लाह आलिमा को तौफीक अता फरमा, और आलिमा को वो सही बातें उम्मत तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा, और उम्मतियाँ जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तेरे जो बंदे हैं उन्हें भी सही बात को सुनने, समझने, याद रखने और उसके मुताबिक अमल करने की तो तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।